خداوند یسوع مسیح کے القادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ اے آسمانی باپ، جب ہم پیدائش دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہماری مدد، رہنمائی، حفاظت فرما اور ہم سب کو برکت دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم پیدائش دوسرے باب کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت سے لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم پہلے باب کو ختم کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ابتدا میں زمین و آسمان اور پانی، اور جب پانی کے اوپر خدا کی روح جنبش کرتی تھی، اور پہلے دن روشنی کے بننے سے لے کر چھٹے دن کے جانوروں کے بننے اور انسان کی تخلیق کے بارے میں ہم پچھلے کچھ وقتوں سے دیکھ چکے ہیں۔ لیکن باب 2 میں جاتے ہوئے، جب ہم باب 2 میں آتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، تو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ 6 دن کی جو تخلیقات ہیں وہ پوری ہوئیں، اور خدا نے جسے کام کو وہ کر رہا تھا وہ اس کام سے فارغ ہو گیا، اور 7ویں دن ختم کر کے اس نے آرام کیا۔ انگریزی میں لکھا ہے ہی ریسٹڈ، اس نے آرام کیا۔ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بن جانے کے بعد جب مکمل کام ہو گیا تو خدا فارغ ہو گیا ہے، آرام اس نے کیا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی ہے۔ آرام سے یوں مطلب نہیں ہے کہ خدا تھک گیا ہے، خدا انسان کی طرح لاغر ہو گیا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے اور وہ تھک ٹوٹ کر اب سونا چاہتا ہے یا 7ویں دن آرام کرنا چاہتا ہے۔ بات یوں نہیں ہے۔ اصل میں میرا ایمان ہے کہ اس نے یہ انسان کے لیے نمونہ ٹھہرایا کہ انسان تو 6 دن میں تھک جائے گا اور اسے آرام کرنا پڑے گا، اور یہ بات ضرور ہے کہ 7ویں دن کو برکت دی، اور 7ویں دن خدا نے ایک بندوبست کیا انسان کے لیے کہ 6 دن جب کام کر کر کے انسان تھک جائے گا تو اسے 7ویں دن آرام کی ضرورت ہوگی، تو اس دن کو مقدس ٹھہرا دیا جائے۔ اس دن خداوند کے فضل سے انسان آرام کرے اور وہ عبادت کرے اور پرستش کرے اور خدا کے لکھے ہوئے احکام کی طرف غور کرے اور خدا سے رفاقت رکھے۔ اس لیے 7ویں دن کو برکت دی گئی۔ اور جب لکھا ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی، یعنی فارغ ہوا، اس نے آرام کیا، ہی ریسٹڈ، اور جس عبرانی لفظ کا یہ فعل کا ترجمہ ہے فارغ ہوا، اس کا ہی جو لفظ ہے وہ سبت کی بنیاد ہے، جس کا مطلب دراصل سبت کا مطلب بھی آرام ہے۔ جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محنتوں سے، مشقتوں سے آرام پائیں گے، اور لکھا گیا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ جب آخرت ہوگی اور خدا کے آرام میں داخل ہوں گے تو سمجھ لیں کہ وہ آرام ایسا ہوگا جیسے
सब्बत के दिन हम देखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बड़ी कॉल दी। उसने कहा, ऐ दुनिया के जो बोझ के नीचे दबे हुए लोग हो, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमें आराम देना चाहता है, हमें फरागत देना चाहता है। और मूसा की शरीयत में सब्बत के हुक्म की एक वजह खुदा का आराम था। खुदा का हुक्म इसमें आया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हफ्ते का पहला दिन है वो इतवार का दिन है, और हफ्ते का आखिरी दिन सब्बत का दिन, 7th डे। हफ्ते का मतलब ही 7वां दिन है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि कई लोग पुराने अहदनामा के मुताबिक जो हफ्ते का दिन है उसको काफ़ी अहमियत देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अहम दिन नहीं है, लेकिन यूरोप में मसीहों ने, जितनी भी हमारी मसीही दुनिया कहलाती है, उसमें उन्होंने क्या किया कि वो 2 दिन छुट्टी करते हैं। वो हफ्ते के दिन को भी एहतराम देते हैं और फिर इतवार के दिन को भी, क्योंकि इतवार के दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, और मेरा ईमान है कि ये रोशनी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की रोशनी भी उसी दिन हुई। दुनिया में एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो आफताब सदाकत है, और उस दिन जी उठने के वसीला से जब इतवार के दिन हम इबादत करते हैं तो उन्होंने दोनों दिनों को अहमियत दी। हफ्ते को भी वो छुट्टी करते हैं और इतवार को भी, इसलिए वीकेंड जब जुम्मा आता है उसके बाद वो सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं। सो हमें भी चाहिए कि उसके दिनों की कदर करें। जब हफ्ता इतवार आता है तो हम खुदा की तरफ माइल हों, आराम और सुकून की तरफ माइल हों। जो 5 दिन हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हफ्ते इतवार को हम मगन हो जाएं खुदा में, हम आराम करें, हम खुदा की तरफ, उसकी रफ़ाकत की तरफ बढ़ें, उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत की तैयारी करें। क्योंकि जब हम खुरूज में देखते हैं तो इसका हुक्म है, और इब्रानियों में जो सब्बत के ताल्लुक़ से, सब्बतों के आराम के ताल्लुक़ से जो तालीम दी गई है उसको हम देखते हैं। आज मैं आपके सामने इन 3 आयात में से ये ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब वो फारिग हुआ, जब उसने 6 दिन में काम कर लिया, तो 7वें दिन को बरकत दी, इसलिए कि इंसान 6 दिन में थक जाएगा और इसको 7वें दिन आराम की ज़रूरत होगी। तो ये बरकत का दिन भी है। और फिर ये भी कहा कि 7वें दिन को तुम पाक मानना। सो उस दिन हम देखते हैं कि आराम है, सुकून है, चैन है, इबादत है, वर्शिप है, खुदा की तरफ ध्यान को लगाना है। मेरे भाइयों बहनों, इससे एक जनरल मतलब भी निकलता है। इंसान दिन रात काम करना चाहता है, वो एक ड्यूटी करता है, वो दूसरी ड्यूटी करता है, वो तीसरी ड्यूटी करता है। वो रुपए पैसे के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, रोजी रोटी के चक्कर में दिन रात घन चक्कर बना हुआ है, और वो दिन रात टेंशन्स के अंदर दिन रात काम कर कर के वो थका हुआ है। और कई दफ़ा हम कई लोगों के मकौले सुनते हैं, जी काम 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 और सिर्फ काम। मैं समझता हूँ कि काम 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 और सिर्फ काम में तो जानवर भी थक जाते हैं, लेकिन हम तो जानवर नहीं हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात तख्लीक हुए हैं। इसलिए हमें अपने आराम का भी ख्याल करना है, खुदा का वक्त खुदा को देना है, फैमिली का वक्त फैमिली को देना है, दोस्तों का वक्त दोस्तों को देना है, बरादरी का वक्त बरादरी को देना है, रिश्तेदारों का वक्त रिश्तेदारों को देना है। एक टाइम मैनेजमेंट करनी है। लेकिन ख़ास तौर पर जब वीकेंड आता है तो हमें 2 दिन, मैं समझता हूँ, आराम करने की ज़रूरत है। कम से कम 1 दिन तो आराम ज़रूरी करने की ज़रूरत है। और उस 1 दिन में हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात हैं उनको कम कर दें, और बाकी दिनों में भी हम ऐसा करें कि जो मसरूफियात अपनी कम करते हुए डेली बेसिस पर खुदा से हम ताल्लुक़ रखें, उसके साथ रिश्ता जोड़ें, उसके साथ रिफ़ाकत करें। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने जैसे फरमाया कि ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आराम दूंगा, तुम्हारी मेहनतों से आराम दूंगा। ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, अगर हम किसी बोझ के नीचे हैं, हम मेहनत उठा रहे हैं, हम जहनी मेहनत उठा रहे हैं, हम टेंशन्स के नीचे हैं, हमने अपने आप को मशरूफ़ किया हुआ है, हमारे पास कोई वक्त नहीं है, हम बिल्कुल ना आराम करते हैं और ना खुदा के लिए हमारे पास टाइम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने ये नमूना सेट किया तो आए हम इस नमूने की तरफ चलें, और हर दिन के लिहाज से भी और वीकेंड के लिहाज से, और फिर जब खुदा का दिन आता है तो खुदा के दिन खुदा को टाइम देने की ज़रूरत है, और उस दिन हमें आराम करने की ज़रूरत है। उस दिन हमें ज़्यादा अपने ज़हन पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, और हमें फैमिली के पास बैठने की ज़रूरत है। और फैमिली को लेकर अगर हम चर्चेस में जाते हैं या हम घर में इबादत करते हैं, हमें चाहिए कि हम खुदा की तरफ मतवज्जो हों, वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। रूहानी बरकत वहाँ से मिलेगी, जिस्मानी बरकत हमें वहाँ से मिलेगी, शिफाएं हमें वहाँ से मिलेगी, माली तौर पर वही बरकत देगा, नफ्सियाती तौर पर हमें मुश्किलों से निकालेगा, हमारी टेंशन और डिप्रेशन से हमें निकाल लेगा। सो मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जब दूसरे बाब की हमने पहली, दूसरी, तीसरी आयत पर गौर किया है, आए हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हम सबको ऐ खुदावन, हम जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमें सब्बत की तरह का आराम देना चाहता है, वो हमारे जहनों को सुकून देना चाहता है। ऐ यीशु तो हमें नफ्सियाती तौर पर सुकून देना चाहता है, रूहानी तौर पर हमें सुकून देना चाहता है, जिस्मानी तौर पर हमें ऐ खुदा बीमारियों, उलझनों, परेशानियों से निकालना चाहता है, हमें बीमारियों से दूर करना चाहता है, हमारी कमज़ोरियों को उठाना चाहता है। ऐ खुदावन तो हमें माली तौर पर सरफराज करना चाहता है कि हम टेंशन न लें कल क्या होगा, जहन को भी आराम देना चाहता है। ऐ आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम दुआ करते हैं कि जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको तू बरकत दे, और रूहानी, जिस्मानी, माली, तालीमी तौर पर, वो रूहानी तालीम हो, जिस्मानी तालीम हो, और नफ्सियाती तौर पर हर एक शख्स को उनके मसाइल से आज़ाद कर, और उन्हें ऐ खुदावन वही आराम बख्श जब तू फारिग हुआ, तूने आराम किया और तूने इंसान के लिए नमूना बनाया। हम सबको भी आराम, सुकून और चैन दे, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।